Good morning, student. Morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, what we discussed in last lecture? Row echelon on reduced row echelon example. Okay, row echelon form and reduced row echelon form. That means we can find the rank of the any matrix by using the row and reduced row echelon form. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How many examples we have done? Anybody? No 5 to idea? 6 example. Okay, 5 to 6 example. Okay. So this is row echelon form. We discuss about the leading entry. Okay, all these we already discussed in our previous lecture. So we start with this. This is my first example. Okay. Then this is my second example. Then this is second. Okay, third example. Okay. Fourth example. No, third. This is all also third example. Okay, now fourth. ये हमने कर दिया था या बाकी है? कर दिया था सर. कर दिया था सर. Okay, 3 1 7 1 2 4 4 minus 1 7 4 minus 1. We already done it. Okay. And please put your mic, student. Yes. Now Over, sir. Over. over. Okay, this is also completed. Yes, sir. Okay, no problem. Yes, very good. Okay, then 1 1 2 1 2 2 2 2 3. ये कंप्लीट हुआ था या बाकी है? बाकी है. Okay. बाकी है सर. Okay, okay. So we start with this example. Okay. So I want to find the rank by using the row echelon form for the given matrix or reduced row echelon form for the matrix. Okay. So what is my first step? You have to think about the first row and first entry. So here first entry is 1, non-zero entry is 1. So we can think about the next below 2 entry. So below 2 entry will be 0. So I use the operation R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus 2R1. जिसको 1 बना है उसी का यूज करो. So next equivalent matrix is, what is my next equivalent matrix? 1 1 2, no change in first row. Then 1 minus 1, it gives me 0. 2 minus 1 1, 2 minus 2 0. Then R3 minus 2 R1. So 2 minus 2 0, 2 minus 2 again 0, 3 minus 4. Okay, so 3 minus 2 into 2, it gives 4. So minus 1. So this is my equivalent matrix after completing one row operation. Okay, then what is my next task? Next task is think about the second row. Okay, in second row, first non-zero entry is 1. So this is my leading one. Okay. And below entry will be 0. So यहाँ पे second जो process करना था वो already completed है. Then we go for the next. So next is my third row. Third row में, yes, third row, yes. Any doubt? Any question, student? Student, any problem? No, sir. Okay, so 0 1 0 0 0 1. So this is my row echelon form. Am I right or wrong? Right, sir. Yes, sir. So Yes, sir. from row echelon form, what is my rank of this matrix? Please mute your Three. mic. Three. 3. 3. 3. Yes, so 3.
So this is the rank of this given matrix by using row echelon form. Now I want to find the reduced row echelon form and then rank. So my next step will be upper side of the last leading one will be 0. So here 0 is there and 2 will be 0. So R1 tends to R1 minus 2 R3 जिसको 1 बनाया था लास्ट लीडिंग था उसी का यूज करो तो भी अच्छी तरीके से आपको मिलेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. सो बिलो सेकंड एंड थर्ड रो विल बी as it is. So 0 1 0 as it is. Now here you can see that 1 minus 0 1, 1 minus 0 1, 2 minus 2 will be 0. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना पड़ेगा कि जो सेकंड रो में 1 है उसके ऊपर वाला एंट्री 0 होना चाहिए. तो नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी R1 tends to R1 minus R2. Okay, so if I do this row operation, then my equivalent matrix is 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, 0 minus 0 0, 0 1 0, 0 0 1. So this is my reduced row echelon form. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And from reduced row echelon form, what is my rank? 3. 3. 3. Okay, so now you can verify here also. Our first step is this one. Okay, 1 1 2 0 1 0 0 0 minus 1. Yes, we got this. Then 1 1 2 0 1 0 0 0 1. After second process, then this is my row echelon form as we discussed here. Then if you think about the reduced row echelon form, then we perform 2 operations. And after performing 2 operations, we have the 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and this is nothing but reduced row echelon form. And from reduced row echelon form, you have the rank is 3. Is there any confusion or doubt in this example? Anybody? No, sir. No. Okay. No, sir. How many students understand this example? Please raise your hand quickly. Okay, 44, 45. Okay, very good. Very good. Thank you for your confirmation. Okay, now we go for the next. Okay, so you can see here. Next is inverse of a matrix. Okay, this is the new method for you. So inverse of a matrix. So inverse कैसे find करते हैं? Anybody have any idea? Inverse कैसे find करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if you have matrix A, so what is my A inverse? 1 upon determinant of A into adjacent of A. Adjoint of A. Yes. Adjoint of A upon determinant. Yes, this is my formula to find the inverse of a matrix. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट ऐसा नहीं है कि यही मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ये थोड़ा ओल्ड मेथड हो जाएगा. नाउ वी डिस्कस न्यू मेथड टू फाइंड द ए इनवर्स. ओके, एंड दैट मेथड इज नोन एज द गॉस जॉर्डन मेथड. कौन सी मेथड है ये? गॉस जॉर्डन मेथड. Jordan method. ओके, तो आपको जब भी पेपर में इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तो ये मेथड नहीं करना है जो आप प्रीवियस जानते हो. ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. इससे एग्जांपल किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, सो कीप इन योर माइंड. हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? गॉस जॉर्डन मेथड. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन इनवर्स के लिए, a square matrix of order m is said to be non-singular or invertible or regular if there exists a square matrix B. means मुझे ऐसा कोई B मैट्रिक्स मिलेगा जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. कौन सा रिलेशन? A into B is equal to identity matrix of order M, क्योंकि हमने दोनों जगह पे ऑर्डर M लिया है, इसलिए यहाँ पे A into B is equal to I identity matrix और B into A is equal to I.
तो you can say also like this, if you have the matrix A and दूसरा कोई मैट्रिक्स जो भी मिलता है वो दोनों का अगर आप प्रोडक्ट फाइंड करो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, then you can say that A inverse is equal to B या फिर B is equal to A inverse. Any doubt in this definition? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Next is we write A inverse is equal to B and it is called the inverse of A. Okay. अब inverse मिलेगा तब उसको आप नॉन सिंगुलर भी में जो मैट्रिक्स है उसको बोल सकते हो नॉन सिंगुलर, इन्वर्टेबल एंड रेगुलर. उसके लिए अलग अलग डेफिनेशन भी हैं. तो सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा? तो जब उसके पास इनवर्स नहीं होगा, दैट मीन्स नॉट इन्वर्टेबल, मीन्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके. और हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा है? नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट. ओके. तो कीप इन योर माइंड, डोंट बी कंफ्यूज. अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इज सेड टू बी सिंगुलर or non-invertible if it is not invertible, means inverse does not exist. Okay. Then remarks. अब कब वो सिंगुलर होगा? सिंगुलर कब होगा? जब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होगा. दैट मीन्स अ मैट्रिक्स A इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर. ओके. अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि नॉट इन्वर्टेबल कब होगा? एनीबॉडी? Determinant is equal to 0. हाँ, डिटर्मिनेंट जब 0 होगा तब इनवर्स नहीं मिलेगा हमको, और जो वो इनवर्स नहीं मिलेगा तब वो मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर और नॉन इन्वर्टेबल. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके. No, sir. A square matrix A of order m is regular if and only if rank of A is equal to m. अब ये rank of A is equal to m क्यों? तो आपको पता है कि हमने माइनर से रैंक फाइंड किया था. ओके. तो माइनर में रैंक फाइंड करने के लिए कौन सा कंडीशन था? एनीबॉडी? भूल गए ना? नो प्रॉब्लम. कि मेरा A मैट्रिक्स जो है वो m क्रॉस m मैट्रिक्स है. ओके. अब उसका मुझे क्या फाइंड करना है? रैंक. तो अगर उसका रैंक मैं फाइंड करता हूं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू m, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? एनीबॉडी? उसका ऑर्डर ही होगा सर, मतलब 2/2 है तो रैंक उसका 2 ही होगा. यस, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ, जो हम लिखते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी m क्रॉस m मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर. याद है ना या भूल गए या रिपीट करूं? ओके. चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि A मेरा 3 क्रॉस 3 है, तो उसका रैंक 3 होने के लिए क्या कंडीशन था? कि मेरा जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट में अगर फाइंड करूं तो एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट मुझे नॉन जीरो मिलना चाहिए. यस और नो? यस सर. Yes. Yes, sir. हाँ, तो बस वही का वही है, सिर्फ m ऑर्डर के लिए डिस्कस कर रहे हो कि A मैट्रिक्स m क्रॉस m है और उसका अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो और अगर नॉन जीरो होता है तो उसका रैंक हम क्या बोलेंगे? m. तो तभी भी आप उसको रेगुलर भी बोल सकते हो. क्लियर? डन? रिमार्क्स नंबर 2. एनी कंफ्यूजन? नो सर. No, Then- sir. हाँ, this is our method, Gauss-Jordan method. Okay, so Gauss-Jordan method के लिए steps you can see Sir. here. Yes, yes, madam. Can you please show previous slide? Yes, yes. Thank Now- you, sir. Okay, okay. Any doubt? No, sir. Okay, okay. Then No sir. okay, then we go for next working rule to find the inverse of a matrix by Gauss-Jordan method if inverse exists. Okay, so first step is I have a one matrix. Okay, अब अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि राइट अ मैट्रिक्स A line means slash IM
Okay, this is my first step. Okay, and apply elementary row operations to reduce it into reduced row echelon form. This is my step number 2. एंड रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म में ये मैट्रिक्स को ट्रांसफर करेंगे तो आपका मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा IM/B। और अगर इस टाइप का मुझे मिलता है देन यू कैन से दैट दिस B मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको इजीली पता नहीं चला होगा तो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। तो आई कंसिडर 1 2 3 0 -1 2 -1 0 0। ओके, दिस इज माय गिवन मैट्रिक्स। अब मुझे गॉस जॉर्डन मेथड यूज करना है तो मैं पहले उसको ये फॉर्म में लिखूंगा। लुक एट हियर, पहले ये जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिखना है आपको। डन। -1 0 0 यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन करेंगे और उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 3/3। हाँ, तो यहाँ पे वी आर टेकिंग 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ यू हैव टू अप्लाई दी रो ऑपरेशंस। क्या हम यूज करेंगे? रो ऑपरेशंस का यूज करना है आपको और उसको रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ट्रांसफर करना है। कौन से फॉर्म में? रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, कॉलन फॉर्म। ओके, तो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर आप ट्रांसफर करते हो फर्स्ट मैट्रिक्स को, ओके, तो आपका मैट्रिक्स जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर इनवर्स एग्जिस्ट है तो। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन अगेन और यहाँ पे कुछ भी होगा, है ना? यहाँ पे कुछ भी एंट्री हो सकती है। यस और नो? यस सर। तो ये जो मैट्रिक्स साइड में जो मैट्रिक्स मिला इट इज योर इनवर्स। दैट मींस A इनवर्स इज इक्वल टू जो भी, अगर ये B है तो आप B बोल सकते हो। डन? एनी कंफ्यूजन इन गॉस जॉर्डन मेथड? No, sir. सर यस। सर जो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन थे वो दोनों साइड पे लगा रहे हैं। हाँ, स्लैश के उसके पूरे मैट्रिक्स पे। ये नया मैट्रिक्स हो गया ना अब तो। ये पूरे मैट्रिक्स पे आपको रो ऑपरेशंस यूज करना है दोनों साइड पे। ओके। लेकिन कॉन्सेंट्रेट ये फर्स्ट वाले को ही करना है। इसी को आपको रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ले जाना है। ये तो ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा पीछे। ओके, एनी डाउट स्टूडेंट इन गॉस जॉर्डन मेथड? No, sir. No, sir. Okay, how many students understand this method? Please raise your hand. Very good, very good. 49 students understand this. Very good. Okay, rest of the student, what is your problem? Any question? Rest of the student? Okay, you can down your hand. Okay, so Gauss-Jordan method. Then note number 1, as in the remark 2 above. अगर आपने रिमार्क 2 अच्छी तरीके से पढ़ा होता तो रिमार्क 2 क्या था? रैंक ऑफ A is equal to M. You can see here. नंबर 2 मेरा क्या है? रैंक ऑफ A is equal to M. तो उसी के ऊपर डिस्कशन है। As in the remark 2 above, if rank of A less than M, then A is singular. हमने बोला था ना, वहां पे डिस्कस किया था कि नहीं? ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ, अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 3 क्रॉस 3 का। तो यू कैन सी हियर कि 3 क्रॉस 3 में अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो हम क्या बोलते थे? रैंक इज नॉट 3, है ना? तो 3 नहीं था तो बिलो 3 हो जाएगा, तो 2 या फिर 1 हो सकता है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इफ रैंक ऑफ A लेस देन M, देन A इज सिंगुलर। ओके, मींस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन वहां पे ब्रेक हो रहा है, तो A इज सिंगुलर एंड A इज सिंगुलर, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
Okay, is there any doubt in note? No, sir. No, sir. No, sir. So first example, I am considering first example, so you can understand the Gauss-Jordan method. Okay, ये मेरा मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स मेरा A is equal to क्या होगा यहाँ पे 0 1 1 1 0 0 2 0 1. ओके, ये मेरा गिवन मैट्रिक्स है. तो मेरा स्टेप नंबर 1 यही है कि मुझे पहले ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में लिखना है. कौन से फॉर्म में हुआ ये? ए लाइन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स AI. डन. ओके, स्टेप नंबर 1 में कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. अब मैं क्या करूंगा? ओके, अब नेक्स्ट मुझे यहाँ R2 और R1 को इंटरचेंज. तो पहले 1 और 2 को इंटरचेंज करूंगा. दोनों में सेम प्रोसेस करना है. हाँ, तो भूलना मत. पहले मैंने क्या किया, 1 के मल्टीपल में 2 है तो R3 टेंस टू R3 माइनस 2 R2 किया तो थोड़ा इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो 0 1 1 1 0 0 नो चेंज, 1 0 0 0 1 0 नो चेंज. अब यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1. अब यहाँ पे 0 माइनस 0 0, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ. देखो 0 था ये एंट्री मेरा, -2 into 1 हुआ तो -2 आया. तो यहाँ पे -2, 1 minus 0 again 1. Okay, so this is my first operation. Then yes सर सेकंड और फर्स्ट को इंटरचेंज नहीं कर सकते? ओके, चल हम उसी तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट में वही कर रहा हूँ. चलो कि R1 इंटरचेंज विथ R2. ओके, सो व्हाट इज माय नेक्स्ट? 1 0 0, भूलना नहीं है, पूरा रो उठाना है. ओके, 0 1 0, यहाँ पे हुआ 0 1 1 1 0 0, देन 2 0 1 0 0 1. ओके, ये कर दिया हमने R1 एंड R2 को इंटरचेंज. डन. एनी डाउट? नो सर. ओके, देन व्हाट इज माय नेक्स्ट प्रोसीजर? यहाँ पे मेरा 1 होना चाहिए तो वो तो 1 हो गया है ऑलरेडी. नाउ आई थिंक अबाउट दी, सॉरी ये 0 बनाना है 2 को. तो दैट मीन्स क्या होगा? R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1. तो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा. देखो 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 नो चेंज, 0 1 1 1 0 0, यहाँ पे 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 एंड 1 माइनस 0 1. ओके, अप टू हियर एनी कंफ्यूजन? हमारी प्रोसेस से जा रहे हैं. एनी डाउट अप टू हियर? नो सर. No, sir. अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे ये 1 होना चाहिए. तो 1 है ऑलरेडी R2 में. देन आई थिंक अबाउट द थर्ड रो. तो यहाँ पे थर्ड में भी यहाँ पे 1 है. तो अब मुझे ये मेरा रो इक्वलन फॉर्म मिला. यस और नो? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. मुझे तो क्या फाइंड करना है? रिड्यूस Reduced row echelon. ओके, तो आप ये जो लास्ट 1 बनाया उसके ऊपर की सारी एंट्री 0 बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे होगा R3 टेंस टू, सॉरी R2 टेंस टू R2 माइनस R3 सीधा है ना, तभी 0 बन जाएगा. R1 में तो कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. तो माय नेक्स्ट सिमिलर मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0, उसमें कोई चेंज नहीं है. लास्ट रो में भी कोई चेंज नहीं है तो आई पुट इट सेम. ओके, अब सेकंड में चेंज है तो 0 माइनस 0 वेरीफाई करना है, भूल मत जाना. एंड 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस यहाँ पे होगा 0 माइनस -2 तो क्या आएगा? +2. ओके, देन यहाँ पे 0 माइनस 1 तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1. ओके, एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. No. अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये 1 जो सेकंड रो में उसके ऊपर 0 बनाना है, लेकिन ये ऑलरेडी 0 है. तो दिस इज माय रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म. यस और नो? Yes, sir. Yes.
अब मेरा रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म आ गया और यहाँ पे आई आ गया। देखो अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी है। देयरफॉर माय इनवर्स इज ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैं सीधा क्या बोलूंगा 0 1 0 1 2 -1 0 -2 1। This is the Gauss-Jordan method. Any doubt in this example? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Sir, can you please show previous slide? Previous slide. Yeah. इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। Okay, okay, yes. This is the previous slide. Now, Thank you, sir. Okay. okay, done. Yes. Yes. Okay. So, any confusion in this example? No, sir. No, sir. ओके तो यहाँ पे देखो तरीके से किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी मेथड हुई, इसको आप फॉलो करेंगे तो कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होगी मेरी मेथड को। ओके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से जंप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रख के करना। अब मैंने नेक्स्ट में क्या किया यहाँ पीपीटी में R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3। सो R1 में मैंने चेंज किया तो R1 माइनस R3 कर दिया। ओके तो यहाँ पे 0 1 1 तो जो चेंज हो जाएगा 0 1 0 1 2 -1 0 1 0 0 -2 1 हो जाएगा। अब R1 इंटरचेंज R2 कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया और हमारा और ये देखो इनवर्स सेम ही आया ना। Am I right? Yes, sir. ओके तो आंसर कभी चेंज नहीं होगा, तो कीप इन योर माइंड। तो इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. Example number 2. Okay, 1 2 3 2 4 6 1 1 1. This is my given matrix. A is equal to 1 2 3 2 4 6 1 1 1। ओके तो पहला स्टेप मेरा क्या है, इस फॉर्म में लिखना है। मैंने लिख दिया 1 2 3 1 0 0 2 4 6 0 1 0 1 1 1 0 0 1। so my first step is completed. What is my step number 2? इसको मुझे किस में ट्रांसफर करना है, रिड्यूस रो इक्वल। ओके तो रिड्यूस रो इक्वल फॉर्म की जो प्रोसेस है मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। तो फर्स्ट एंट्री शुड बी 1। सो यहाँ पे 1 है तो बिलो की एंट्री 0 बनाना है तो क्या होगा मेरा R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 R2। ओके इन्होंने सीधा किया है कि पहले 2 की हेल्प से R3 को 0 बनाया है तो यहाँ पे ओके रॉन्ग ऑपरेशन है यहाँ पे, सॉरी। ओके R2 होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। हम हमारी मेथड से जाएंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 2 4 6 1 1 1 और यहाँ पे लाइन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके सो माय फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, 1 है। अब सेकंड में मुझे करना है R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। इसमें थोड़ा प्रोसेस लेंथी है और थोड़ा ध्यान भी ज्यादा रखना है, तो थोड़ा ध्यान रखना। 1 2 3 1 0 0 नो चेंज। अब 2 माइनस 2 हो गए 0। अब सेकंड एलिमेंट के बारे में सोचो तो 4 माइनस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। सो 4 माइनस 4 0 6 माइनस 6 0। यहाँ पे 0 माइनस 2 इट गिव्स मी माइनस 2। 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 तो 0 होगा। अब यहाँ पे R3 के लिए सो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी? एनीबडी? No, sir. No, sir. अब यहाँ पे देखो 0 0 0 है और यहाँ पे -2 1 0 है तो यहाँ पे ही हमको रो रिड्यूस रो इक्वल फॉर्म बनाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है 0 0 0 नीचे ले Interchange. R2 इंटरचेंज विथ R3। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 1 0 0
अब मुझे इंटरचेंज करना है तो 0 0 0 -2 1 0 नीचे लिख दिया, 0 -1 -2 -1 0 1 यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बताएगा? Rank is not equal to m. यस, ओके, तो हमारी जो नोट है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो -1 था, -2 है, यहाँ पे सेकंड रो के लिए लीडिंग 1 बन जाएगा। व्हाट अबाउट थर्ड रो? थर्ड रो में यहाँ पे लीडिंग 1 बनेगा ही नहीं। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लीडिंग 1 नहीं बनेगा, तो हमारा जो फॉर्म है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी होगा तब जाके हम इन्वर्स करते थे ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. No, sir. और रीजन में भी हम वही लिखेंगे, रैंक ऑफ ए वाला। ओके, तो यहाँ पे देख लो आप, हमने जो किया वही का वही आ गया। ओके, 1 to 1 उन्होंने दूसरी तरीके से किया है, लेकिन द रीजन इज सेम, विच इम्प्लाइज द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज लेस देन 3। ओके, तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन 3 है, तो इसलिए वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड इफ द सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। Here, how many students understand this? Please raise your hand. Yes, very good. Okay, तो हमने दोनों केस यहाँ पे कंसिडर किया। 48, 47, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो दोनों केस हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि कब इनवर्स एग्जिस्ट होगा एंड कब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। ओके, so inverse does not exist. Now we go for the first example. Okay, तो कैसे मिलेगा वो यहाँ पे देखते हैं गॉस जॉर्डन से। तो ऐसे जो एग्जांपल है उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या होगा? फाइंड द इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? देखो यहाँ पे मेरा थीटा 0 to पाई होना चाहिए एंड थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 एंड थीटा नॉट इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ये कहाँ से आया? तो आपको उसका एग्जिस्टेंस दिखा रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आप सब जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 2। ओके, ये हो जाएगा साइन, क्या होगा? अगेन पाई बाय 2, यहाँ पे होगा माइनस साइन पाई बाय 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाय 2। ओके, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हमको इनवर्स नहीं मिलता है। और सेम चीज 3 पाई बाय 4 के लिए होगा। कॉस यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे माइनस साइन 3 पाई बाय 2 होगा और यहाँ पे cos 3 पाई बाय 2 होगा। दैट मीन्स जहाँ पे इनवर्स का प्रॉब्लम हो रहा है वो दोनों पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया। डन? एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. Okay, now we go for the inverse. So we start step number 1, cos 2 theta sin 2 theta minus sin 2 theta cos 2 theta 1 0 0 1। ओके, अब मुझे यहाँ पे 1 लाना है तो क्या करूंगा? एनीबॉडी? क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला जो ट्रिगोनोमेट्रिक है उसका मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखो r1 टेंस टू cos 2 थीटा इंटू r1, मैंने cos 2 थीटा से ही मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे बन रहा है देखो cos स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे हुआ cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा cos 2 थीटा 0 माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा 0 1। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक में फिक्स फॉर्मूला है तो उसी का मुझे यूज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय करूंगा तो एग्जाम्पल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, तो इसीलिए हमने नहीं किया है, सीधा उससे सिंपल वे में कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है? तो r1 टेंस टू r1 माइनस साइन 2 थीटा r2, तो मुझे r2 को साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो 1 आ गया, क्योंकि cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस होगा ना, sin स्क्वायर 2 थीटा इट गिव्स मी 1। यहाँ पे देखो और ये ऑटोमेटिक 0 हो गया। ओके, सो 0, यहाँ पे cos 2 थीटा माइनस 0, सो cos 2 थीटा, यहाँ पे हुआ 0 माइनस sin 2 थीटा, तो माइनस sin 2 थीटा, और सेकंड रो एज इट इज। एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? Sir, please explain again. ओके, यहाँ पे देखो मुझे फॉर्मूला है मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो उसी का यूज करना है मुझे। तो उसी का यूज करने के लिए मैंने क्या किया, पहले उसको cos को cos से ही मल्टीप्लाई किया, तो पहला स्टेप हो गया। तो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन फर्स्ट स्टेप में? नो सर। ओके, No, sir. अब मुझे दूसरा क्या करना है कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। तो cos स्क्वायर थीटा के साथ sin स्क्वायर होना चाहिए। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि नीचे sin 2 थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, उसी को उससे मल्टीप्लाई करके r1 के साथ एडिशन कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखो r1 टेंड्स टू r1 माइनस sin 2 थीटा r2। तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या होगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस माइनस sin 2 थीटा। ओके, देन उसके साथ होगा cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। ओके, डन, cos 2 थीटा, एंड साथ में यहाँ पे होगा cos 2 थीटा माइनस 0, दैट मीन्स cos 2 थीटा, एंड यहाँ पे 0 माइनस sin 2 थीटा, तो यहाँ पे माइनस sin 2 थीटा होगा। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट में नो चेंज, दैट मीन्स sin 2 थीटा एज इट इज, cos 2 थीटा एज इट इज, यहाँ पे 0 एज इट इज, 1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो इसको एक्सपांड करो, तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, उसकी जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ। यस, ये हो गया 1। अब ये तो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 0। ये तो एज इट इज हमने अभी डिस्कस किया, cos 2 थीटा माइनस यहाँ पे sin 2 थीटा एज इट इज रहेगा। ओके, यहाँ पे 1 माइनस, तो माइनस sin 2 थीटा एज इट इज, cos 2 थीटा एज इट इज, 0 एज इट इज, एंड 1। नाउ इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? नो सर। सर यस सर sin square theta. थीटा 5/4 सर थीटा 5/4 और 3/4 लेने प्रॉब्लम कैसे होता है? हाँ, तो वो प्रॉब्लम इसीलिए कि उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ओके सर। ओके, डन। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट ये हो जाएगा, देन r2 टेंड्स टू r2 प्लस sin 2 थीटा r1, क्योंकि हमको इसी को 0 बनाना है। ओके, तो 0 बनाने के लिए हम जो ऑपरेशन यूज करते थे वहां नंबर की जगह पे अब sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा का 0 बनाना है। तो यहाँ पे 1 0 cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा हुआ। अब यहाँ पे देखो माइनस sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा, तो 0 हो गया। अब इसकी एंट्री चेक करते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी cos 2 थीटा है, अब उसमें मैं प्लस sin 2 थीटा इंटू r1 की एंट्री 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया, तो मेरा cos 2 थीटा एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 0 था, तो 0 प्लस sin 2 थीटा इंटू ऊपर की एंट्री है cos 2 थीटा, तो मेरा बचेगा sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, एंड लास्ट में मेरा होगा देखो 1, अभी की एंट्री है माइनस नहीं प्लस करना है, sin 2 थीटा करना है, और यहाँ पे माइनस sin 2 थीटा आएगा, तो ये मेरा टोटल हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट? cos square theta. cos स्क्वायर 2 थीटा। तो एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? No, sir. No, sir. Okay, so next step will be cos 2 theta will be 1, so यहाँ पे देखो उसको cos 2 theta से डिवाइड कर दिया, so 1 0 0 1 cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा बचेगा। तो इनवर्स इज माय इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जो दिया है उसका इनवर्स हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, और यहाँ पे sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। डन, क्लियर? सो हियर दिस इज माय ओके इनवर्स। ओके, अब यहाँ पे देखो पहले हमने डिस्कस किया कि ये दोनों नहीं है तो क्या हो रहा है। ओके, एनी कंफ्यूजन?
सर हाँ सर अगर थीटा को 5/4 डालेंगे मैट्रिक्स मतलब जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो उसको डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे 1 आ रहा है, 0 नहीं आएगा सर 5/4 डालने में। 1 आएगा, सही तो बात है। लेस देन 2 हो जाएगा ना। यस 1 आएगा, सही बात है, लेकिन यहाँ पे देखो cos π/4 के लिए 1 मिनट यहाँ पे देखो cos θ इज इक्वल टू π/4 एंड θ इज नॉट इक्वल टू 3π/4 हमने जो लिया ना वो इसी के लिए लिया। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं θ इज इक्वल टू π/4 रिप्लेस करता हूँ तो मैं इससे डिवाइड नहीं कर सकता ना, यस सर, है ना, और θ इज इक्वल टू 3π/4 के लिए सेम इश्यू। डन? यस। तो उसका मैट्रिक्स में 1 आएगा। 1 आएगा मीन्स हाँ डिटर्मिनेंट 1 आएगा, सही बात है आपकी, ओके वो सही बात है वो, लेकिन मैंने वहां पे जब बोला तब ये मैं भूल गया कि θ इज इक्वल टू π/4 पे यहाँ पे इश्यू हो रहा है। डन? आई एक्सेप्ट इट, सॉरी। डन? ओके अब देखो, अब ये तो हमने किया कि दो पॉइंट जब ये नॉट इक्वल टू होंगे तब, लेकिन व्हाट अबाउट द इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के लिए भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ θ इज इक्वल टू π/4 के लिए क्या होगा, तो जब θ इज इक्वल टू π/4 है तब यहाँ पे देखो आप ये 0 1 माइनस 0 होगा ना, ये गिवन मैट्रिक्स आपने अभी बोला कि डिटर्मिनेंट 1 होगा, यहाँ से दिख रहा है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे θ इज इक्वल टू π/4 के साथ जाऊंगा तो मेरा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ऐसे मिलेगा 0 1 1 0 -1 0 0 1। अब इसको तो मैं बना सकता हूँ ना रिड्यूस्ड रो इक्वल फॉर्म में, कैसे बनाऊंगा? इंटरचेंज करेंगे, यस इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1 0 0 1, ओके, और यहाँ पे क्या होगा 0 1 1 0। डन? इंटरचेंज कर दिया, देन r1 टेंड्स टू -1 r1, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे नेक्स्ट मिलेगा मुझे 1 0 0 -1, ओके, और ये एज इट इज रहेगा 0 1 1 0। तो अगेन आई हैव द इनवर्स फॉर θ इज इक्वल टू π/4, नो इश्यू, क्लियर? Yes, sir. ओके ये पूरा हो गया, जो हमने किया वही का वही। नाउ थिंक अबाउट θ इज इक्वल टू 3π/4 पे, तो 3π/4 अगर आप रखेंगे तो सेम मैट्रिक्स अगेन आया 0 -1 1 0 1 0 0 1, सिर्फ 1 एंड -1 इंटरचेंज हो गए, है ना, तो अगेन आई कैन इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड रो, तो फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 0 0 1 0 -1 1 0, एंड if I multiply -1 to second row then I have the reduced row echelon form and my inverse is this, okay। तो दोनों के लिए इनवर्स तो मिला ना हमको? यस सर। तो यहाँ पे हमने पहले किया फर्स्ट केस में थीटा जब नॉट इक्वल टू π/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/4 नहीं तब। डन? नंबर 2 की थीटा इज इक्वल टू π/4 है तब व्हाट वी हैव, एंड नंबर 3 किया थीटा इज इक्वल टू 3π/4 है तब, ओके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि किसके लिए करना है, इसलिए जनरल केस में करना पड़ता है। तो जनरल केस के लिए हमने 3 केसेस कंसीडर किए। केस नंबर 1 थीटा नॉट इक्वल टू π/4, थीटा नॉट इक्वल टू 3π/4। अभी हमने ऐसा क्यों लिया था कि हमको 1/cos 2θ करना था, इसीलिए। अंडरस्टैंड? यस सर। नहीं तो हम नहीं कर सकते, ओके, क्लियर? और सर यस, और दोनों कंडीशन के लिए वो इनवर्स भी अलग आएगा ना? दोनों कंडीशन के लिए इनवर्स अलग आएगा ना? देखो यहाँ पे 0 1 हुआ, -1 0 हुआ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 -1 1 0, और यहाँ पे हुआ, हाँ ये सिर्फ -1 से वेरी हो रहा है ना, तो Yes, इनवर्स sir. अलग Yes, होगा। sir. ओके। यहाँ पे देखो, चलो मैं यहाँ पे लिख दिया तो आपको पता चले। इस केस में मेरा इनवर्स आया 0 1 -1 0, ओके,
और ये केस में, आगे वाले केस में मेरा बन रहा है इनवर्स 0 - 1 1 0 0 - 1 1 0। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों में ये सिर्फ डायगोनल में नेगेटिव है ना? इनवर्स तो डिफरेंट ही मिला ना। Any doubt? Sir, please show previous slide, sir. Yes, I can go previous slide. 1 minute. Yes, this one is my previous slide. Okay. Okay, sir. Okay. ये जो मेरा है, ये जो फर्स्ट मुझे मिला वो जनरल मिला, cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब हम ये स्टेप नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये सेपरेट फाइंड किया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 के लिए। अब वही की वही वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो, या देखो मेरा ओरिजिनल इनवर्स मेरा ये आया है cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। ओके, अब इसी में आप थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रिप्लेस करो। चलो क्या आएगा, तो यहाँ पे cos पाई बाय 2 आया माइनस sin पाई बाय 2 आएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा sin पाई बाय 2 और यहाँ पे मिलेगा cos पाई बाय 2, लेकिन cos पाई बाय 2 0 होता है एंड sin पाई बाय 2 1 होता है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0 - 1 1 0, वही का वही मिल रहा है, देखो आप। Yes, yes, sir. Okay. Same if you consider theta is equal to 3 pi by 2, sorry 3 pi by 4, then you have the same matrix, same inverse matrix. Student, पता चल रहा है या फिर नहीं पता चला? चल गया सर। ओके, लेकिन सिर्फ नॉट इक्वल टू किस लिए लेना पड़ा, जनरल केस फाइंड करने के लिए। यहाँ पे जो उसको डिवाइड करना था वही हमारा प्रॉब्लम था। ओके, जो प्रॉब्लम हटाने के लिए हमने वो 2 पॉइंट को वहां से रिमूव किया पहले, और उसके बाद एट दैट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इज देयर एनी डाउट? नो सर। No, नो सर। ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? प्लीज रेज योर हैंड। और किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, आई एम हियर, नो प्रॉब्लम। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन डिस्कस विथ मी। गुड, वेरी गुड, 46 स्टूडेंट अंडरस्टैंड। ओके, तो ये जो है एक थोड़ा एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें आपको 3 केसेस लेने हैं। केस नंबर 1, थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा नॉट इक्वल टू 3 पाई बाय 4। सेकंड, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 के लिए। ओके, क्यों ये 3 केस किस लिए हुए, तो ये जो 1/cos 2 थीटा है, ये टर्म को एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए हमने ये फर्स्ट केस लिया। उसके बाद वही पॉइंट पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है स्टेटमेंट में। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड इट जनरल। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हमने डिस्कस किया, देन थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 भी हमने डिस्कस किया। ओके, ओके, नाउ दिस इज homework example for today. Okay, we will discuss it in our next class, so please write down this example and try for this. Okay, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप स्टेटमेंट लिख दो। फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 2 5 0 -1 2 2 4 10 by Gauss-Jordan method if exist. ओके, एग्जिस्ट होगा तभी हम फाइंड करेंगे, एग्जिस्ट नहीं है तो नहीं फाइंड करेंगे। हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया। ओके, सो इज देयर एनी डाउट इन होल सेशन? नो सर। आज के पूरे क्लास में कोई डाउट है किसी को? नो सर। एनीबडी? Okay, so if you have no doubt, then good day, take care.